Hey guys, hi. Good morning or evening, I think. Well, the big problem is, I guess we all have exams coming in. Term 1 exams, NTSC exams, NSCGS अभी announced नहीं हुआ and all of that. तो the problem is कि हमें लगता है यार क्या क्या करें, right? And I understand your problem. It's not that मैं आपको criticize कर रहा हूँ कि नहीं, अरे करो भाई करो. So I understand you have schools, you have tuitions, you have us as well helping you. You have a lot of help. You have a lot of pressures sometimes. You are dealing with sports. वैसे तो schools lockdowns, right? You're dealing with school projects. You're dealing with a lot of activities, and sometimes ये कुछ ज़्यादा हो जाता है. And I understand becomes a problem for you. ऐसे situations में how do you find your path? How do you find your path ahead so that you are good here and you're good here? So what to do? How to stay motivated? ठीक है, motivated कैसे रहें, कैसे अपने आप को ड्राइव करते रहें, और इन शॉर्ट कैसे थके नहीं. थकना, और थकना आई डोंट मीन physical thakan. I mean mental thakan. How to avoid that mental thakan that I'm talking about. And guys, this session is not hearsay. ये मेरी बस सीखी हुई बातें नहीं है. This is based on pure psychology as well. So I will be talking you through a lot of different psychological things in this 15-minute ka session. We'll talk about hierarchy of motivation, how to get up the ladder, है ना, आगे बढ़ें कैसे. So we'll talk about all of that. But before that, I have a few questions. कितने लोग पढ़ना पसंद करते हैं? How many of you enjoy reading? And believe me, everything makes sense. हर एक क्वेश्चन का कोई मतलब होगा. How many of you enjoy studying? I hope you have a question. You have an answer. Do you enjoy reading, or do you study because it gets you marks and it will get you a good college, it will get you a good job? What's your reason to study? पहला और बहुत simple question. And have you eaten today? क्या आपने, do you think that you ate as per what you should have or not? These are two questions. You have to write down your answers somewhere. कहीं ना कहीं पे आप ये answers लिख लो if you're listening to me and paying attention. So don't worry, I'll use your answers in the session coming ahead. So guys, what is motivation? Motivation is something that pushes us ahead, that says that yes, this is worth it. You want to give this a try, you want to put in all your effort. आप करना चाहते हो ये. क्यों करना चाहते हैं? What could motivate you? क्या आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? तो we have two sources of motivation: extrinsic motivation and intrinsic motivation. अब नाम ही थोड़ा बता रहा है कि extrinsic, बाहर की चीजें. You're motivated by a few things that's outside. जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, जैसे कि दी अचीवमेंट वाली फीलिंग जब आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी एग्जाम्स में, जैसे कि द पैट ऑन योर बैक, शाबाशी जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, या आपके पेरेंट्स जब अपने फ्रेंड्स के सामने आपकी बड़ाई करते हैं. एंड गाइस, आप अपने पेरेंट्स को इन सेशन में बुला सकते हो. बिलीव मी, कॉल योर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज ये सेशन इसीलिए रिकॉर्डेड बनाया गया है ताकि ये छोटा रहे और आपके पेरेंट्स भी आपको इसके साथ आपके साथ बैठ के देख सकें. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो भी समझ पाएंगे, क्यों? उनकी लाइफ में भी होता है. अगर मैंने सही सही काम किया तो अप्रेजल अच्छे से मिलेगा. दिस इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर देम, राइट? सो एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की चीजें जो हमें प्रेरित करती है. एक ट्रॉफी का आना, पेरेंट्स की शाबाशी, रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, एग्जाम क्वालिफिकेशन, अच्छी जॉब, अच्छा कॉलेज, ये सारी चीजें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. ये गलत नहीं है, बट ये बाहरी चीजें हैं जो आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेट करती है. देन देर इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है यू डू इट बिकॉज यू फील अमेजिंग वाइल डूइंग इट. आपको वो काम करते वक्त
काफी खुशी मिलती है। जैसे मे बी आपको कुकिंग में बड़ा मजा आता है। अब यहां पे ये मत सोचना कि कुकिंग इज अ हॉबी, तो इट कांट बी योर लाइफ चेंजिंग गेम, वो आपका करियर नहीं हो सकता। ये बात मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं कि सर अच्छा तो बस खाना बनाते समय लगता है या तो फिर फुटबॉल खेलते समय लगता है। आप सभी ने महान क्रिकेटर्स, सचिन तेंदुलकर, हॉकी प्लेयर्स, राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द फेमस फुटबॉल प्लेयर मेसी, यू हैव हर्ड ऑल ऑफ दीज नेम्स। अगर वो भी सोचे होते यार ये तो हॉबी है, तो फिर तो वो आते ही नहीं ना। सो गाइज, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग दैट मोटिवेट्स यू विदाउट एनी नीड फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट। आपको कोई भी चीज बाहर से नहीं चाहिए, आपको बस वो काम करते समय अच्छा लगता है। अब मैंने आपको पूछा था डू यू एंजॉय स्टडीइंग, वो क्वेश्चन अब यहां आंसर होगा। अगर यू आर इंटेंसिकली मोटिवेटेड टू स्टडी, आपको पढ़ना अच्छा लगता है कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, होल्ड ऑन टू दैट। क्यों? क्योंकि वही लॉन्ग टर्म में आपको रेजिलियंस देगा। अब रेजिलियंस क्या होता है बेटा? फेलियर्स इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ करें और कभी फेल ही ना हो। 100% इज अ मिथ, नहीं होता। हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ फेल होंगे ही होंगे। उस केसेस में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हट जाता है। सोचो, आप चाहते हो कि एग्जाम क्वालिफाई हो, एग्जाम क्वालिफिकेशन आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बट नहीं कर पाए, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हट गया, राइट? तो अगली बार सेम काम करने के लिए आप में भी उतना प्रेरित नहीं होगे, राइट? बट इफ यूर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, यार मुझे पढ़ना है, एग्जाम तो चलो ठीक है कर लेंगे, तो यार इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कि भाई मैं करना चाहता हूं इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये पहला एस्पेक्ट है मोटिवेशन का कि आप किधर से मोटिवेटेड हो, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अगर सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा तो रेजिलियंस घट जाता है। रेजिलियंस मतलब वापस उठ के खड़े होने की एबिलिटी। एक बार अगर गिर गए, कैन यू गेट बैक ऑन योर फीट? हार को जीत में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज रेजिलियंस। और रेजिलियंस कैसे आती है? मेक श्योर यू हैव एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर फॉर यू। दूसरी चीज, एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स थोड़े से शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका सपना क्या है, क्या आपका सपना एनटीएससी क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, आईआईटी जेई क्वालिफाई करना है? नहीं, वो आपका सपना नहीं है। आपका सपना है मे बी एन इंजीनियर बनना, अ डॉक्टर, अ सीए, अ राइटर, अ पोएट, अ कुक, अ क्रिकेटर, एन एक्टर, अ लिरिसिस्ट। वो आपका सपना है। सो योर सपना, योर ड्रीम, आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये एग्जाम्स हो सकते हैं, बट कई लोग इन एग्जाम्स को सेंटर ऑफ लाइफ बना लेते हैं कि भैया जो है से ये एग्जाम ही है। नो, नो, नॉट एट ऑल। योर मोटिवेशंस शुड बी इंट्रिंसिक, एंड यस, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन डज हेल्प। अभी मैं बताऊंगा कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कैसे चैनल करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए ये बात को याद रखना, हमेशा जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, मनी, फेम, ग्रेड, प्रेज, ये सारे एक्सट्रिंसिक चीजें जो है, नो डाउट दे कैन मोटिवेट यू, बट अंदर से मोटिवेशन होना जरूरी है। एंड अगर पेरेंट्स इन सेशन को देख रहे हैं, और बेटा मैं चाहता हूं कि आपने पेरेंट्स को लेकर आओ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, डू नॉट पुश योर किड्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल मोटिवेशन। आप उन्हें हमेशा यही बोलते हो, जॉब नहीं मिलेगी पढ़ोगे नहीं तो, पास नहीं होगे एग्जाम में, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो आप उन्हें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ गाइड कर रहे हो। आप उन्हें बार बार बता रहे हो कि भैया पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि उससे जॉब, कॉलेज और एग्जाम क्वालिफाई होगा। आप कभी ये नहीं बोलते हो कि अगर नहीं पढ़े तो यार कल को कुछ अच्छा कैसे करोगे, कल को कुछ अच्छा कैसे बनोगे, राइट? सो गाइस, पहले ऐसा ही होता था। हमारा फोकस होता था अपने सपनों को पूरा करना। एपीजे अब्दुल कलाम को कभी किसी ने नहीं बोला, सर एपीजे अब्दुल कलाम को, कि भैया नहीं पढ़ोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे बनोगे?
But how did he become the president of India? Because of the internal, intrinsic motivation that he enjoyed working with machines, right? So, to all the parents, मैं ये नहीं कह रहा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मत दो, दो जरूर दो, और मैं बताऊंगा कैसे देना होता है, लेकिन remember, try to motivate your kids by arousing in him the intrinsic motivation. उसकी जो भी चीज उसे बहुत पसंद है करना या पढ़ना, try to motivate him or her in that direction, right? अब आते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में। ये तो सबके साथ होता है, अगर अच्छे ग्रेड्स आए तो पापा ने नई साइकिल, नया मोबाइल गिफ्ट कर दिया, मम्मी ने नई ड्रेस दिलवा दिए। सो ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। बट कभी काल क्या होता है, रिवॉर्डिंग विदाउट परफॉर्मेंस मेक्स इट लेस अट्रैक्टिव। मतलब क्या है यार, नंबर तो सो ही आए, एवरेज ही आए, बट एवरेज आने पर मैंने ये नहीं बोला कि यार ठीक है अगली बार और मेहनत करेंगे। मैंने क्या किया, अरे रिपोर्ट कार्ड आया चलो बाजार चलते हैं, नहीं। इसका ये मतलब है कि आप ये मैसेज पास ऑन कर रहे हो कि भैया कुछ करो ना करो मिल तो जाएगा ही। नो, दैट इज नॉट गुड। बट हाँ, उसको फिर डांटना भी नहीं, यार कैसे नंबर आ गए, तू तो मतलब गधा है एक नंबर का, नहीं। यू हैव टू कीप ऑन मेकिंग हिम रेजिलियंट, यू हैव टू कीप ऑन हेल्पिंग हिम, बाय हिम अ बुक, बाय हिम अ रिसोर्स दैट मेक्स श्योर कि वो बिलीव करते हैं कि आप उनमें बिलीव करते हो। दे बिलीव दैट यू बिलीव इन देम, दे बिलीव दैट यू बिलीव दैट दे कैन डू बेटर। ये कैसे करोगे आप? सो मेक श्योर यू एंड योर पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स हैं तो आप, अगर बच्चे हैं तो आप, यू शुड ऑलवेज रिवॉर्ड द स्टडीइंग थिंग, राइट? रिवॉर्ड व्हेन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज डन, चाहे वो पढ़ाई हो या ना हो, फुटबॉल की ट्रॉफी आए तो भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पेंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए तो भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब आप बोलोगे ये इसको लॉन्ग टर्म में कैसे हेल्प करेगा? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है। बात है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर शब्द से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि हम सोचते ही नहीं कि कई बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस पीपल आर एक्टर्स एंड पेंटर्स, पिकासो, माइकलएंजेलो, प्रियंका चोपड़ा, right? Who are these? Are they people, someone who are excellent in physics? No, they're people who are excellent in whatever form of art they chose. So reward when something extraordinary comes their way, irrespective कि भैया वो आर्ट्स हो, साइंस हो या मैथ्स हो। रिवॉर्ड द एफर्ट्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट्स को रिवॉर्ड कीजिए। इफ दे आर ट्राइंग, you have to give your support, boost their positive feelings। उनको हमेशा ये मत बताओ वो क्या नहीं कर सकते, उनको ये बताओ कि क्या कर सकते हैं। if there's positive feelings, it becomes better for them। favor rewards rather than punishments। अब ये दोनों जो है ना, साइकोलॉजी की भाषा में we call them reinforcers and we call them rewards। तो अगर कोई काम नहीं करने से उनको पनिशमेंट मिल रहा है, दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ मैसेज टू देम, कंडीशनिंग टू देम कि हाँ भैया नहीं करेंगे तो भैया पिटाई लगेगी। बट ऑलवेज रिवॉर्ड्स आर बेटर देन पनिशमेंट्स, राइट? सो रिवॉर्ड्स आर बेटर देन पनिशमेंट्स एंड नॉट दैट आई से दैट यू मस्ट ओवर ईट, राइट? बट ट्राई टू गिव योरसेल्फ रिवॉर्ड। अब दूसरी बात है डर। एक चीज जो हमारे मोटिवेशंस को किल करता है वो है डर। किस चीज का डर? फेल हो गए तो पापा लेट डाउन फील करेंगे, मम्मी को लगेगा कि उनकी मेहनत को मैं यूज नहीं कर रहा। सो इफ यू हेट समथिंग यू विल बी अफ्रेड, यू हेट बीइंग डाउन, पुट डाउन, you hate being disappointed or disappoint someone, right? Fear comes because you think of exams as a doorway to success or failure। तो आपको एग्जाम का फियर नहीं होता,
आपको एग्जाम के आने रिजल्ट का फियर होता है कि क्या वो सक्सेस होगा, फेलियर होगा, और आपका अपना पूरा जर्नी आप उसी फेलियर पे केंद्रित कर देते हो। दैट इज व्हाट इज रॉन्ग। नहीं, ऐसे नहीं करते। एंड पेरेंट्स को इसमें आगे आना पड़ेगा। यू विल हैव टू सपोर्ट योर चाइल्ड कि भैया कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, बाकी मैं हूं। राइट? सो नेवर से आई हेट बायोलॉजी, नेवर से आई हेट अ सब्जेक्ट, नेवर से आई हेट मैथ्स, आई हेट फिजिक्स। नहीं, जब आप हेट करते हो, वो हेट्रेड कहां से आता है? क्योंकि शायद समवेयर डाउन द लाइन यू रियलाइज कि शायद आप उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो, एंड यू थिंक कि अगर उसमें गड़बड़ की तो यार पूरा मार्क्स गड़बड़ हो जाएगा। नो, इफ यू हेट अ सब्जेक्ट, इट्स जस्ट बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड इट बेटर इनफ टू गेट अ गुड मार्क्स। राइट? इंजॉय द प्रोसेस, सीखने में विश्वास रखो, स्पेशलाइज करने में नहीं। स्पेशलाइज करने का भी समय आएगा, और स्पेशलाइज जरूर करो, बट स्पेशलाइज करना आपको किसी चीज को नहीं सीखने का गारंटी नहीं देता कि जस्ट बिकॉज आई एम वेरी गुड इन फिजिक्स आई विल हेट बायोलॉजी बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड इट। नो, दैट इज लाइक अ गिवन अप एटीट्यूड कि भैया हम तो हार मान गए, बायो तो ना होगा हमसे। नो, ऐसे नहीं होता। मुझे सब कुछ करना है। तरीके हैं बेटा। आप इंटरनेट हमेशा ब्राउज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, गॉड नोस व्हाट एंड व्हाट नॉट। कभी पढ़ाई का कोई सॉन्ग बनाया है? व्हाई नॉट? माइटोकॉन्ड्रिया का स्केच बनाओ। बेटा तरीके नए हैं, टेक्नोलॉजी बदल जरूर रही है, बस अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सिर्फ कैमराज में करोगे तो फायदा क्या होगा बेटा? टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्रिएट अ स्टडी सॉन्ग। वही पुरानी चीजें करते हुए नया रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। राइट? सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के फायदे क्या हैं? इट्स पर you'll बी परसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको तो इससे इससे मतलब ही नहीं है कि आपके रिवॉर्ड्स क्या है। आपको किससे मतलब है? कि आपको खुशी मिली, और खुशी कब मिलेगी? जब आप करोगे। इट अलाउज क्रिएटिविटी बिकॉज योर इंटायर फोकस इज ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द एंड गेम। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है एंड गेम पे, रिजल्ट पे फोकस करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्रोसेस पे फोकस करता है। तो इट अलाउज यू टू क्रिएट मोर, हाई क्वालिटी लर्निंग होती है, और इससे आपकी फंक्शनिंग भी इंप्रूव होती है। राइट? नाउ सेवरल टाइम्स क्या होता है कि व्हेन वी फेल, और जब बहुत कुछ करना होता है, वी आर अंडर स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज परसीव्ड एज अ सिचुएशन दैट इज चैलेंजिंग टू यू। आपको चैलेंज कर रहा है ये सिचुएशन। आपका इमोशनल ब्रेन, जो मैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाता हूं, लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। लिम्बिक सिस्टम आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कई बार एक्टिव, हमेशा नहीं बट कई बार अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिव कर देता है। एंड व्हाट इट डज इज अ लॉट ऑफ ग्लैंड्स एक्टिवेट, जो आप पढ़ते हो मेरे साथ। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा। एड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन्स को सिक्रीट कराएगा। इमरजेंसी हार्मोन्स बॉडी का अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। भूख लगनी बंद हो जाएगी, इम्यून सिस्टम गिर जाएगा। तो स्ट्रेस इज रियल, और इट इज गुड एंड बैड। छोटे टर्म के लिए स्ट्रेस लेना अच्छी बात है। एग्जाम के कुछ दिन पहले अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो तो इट्स ओके। वो स्ट्रेस आपको, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, ब्रेन ज्यादा अलर्ट है, ब्लड ग्लूकोज का फ्लो बढ़ा हुआ है ना? दैट इज गुड फॉर यू। क्रोनिक स्ट्रेस, एक एक महीने स्ट्रेस में बैठे हुए हैं, वो सही नहीं है। राइट? तो बेटा व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज योर बॉडीज रिस्पॉन्स टू समथिंग चैलेंजिंग। और ये अच्छा है अगर ये शॉर्ट टर्म होता है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये बुरा है। अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट स्लीप, नींद नहीं आएगी, इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, अटेंशन गिरेगा, समझने की कैपेसिटी गिर जाएगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कम हो जाएगा, लर्निंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो गाइज ऑल ऑफ दिस इज रियल, ये सब कुछ रियल है। अब कहते हैं मैनेज कैसे करें स्ट्रेस को? सर स्ट्रेस तो होता ही है, हाउ डू वी मैनेज इट? सो इन ऑर्डर टू वर्क यू नीड टू थिंक ऑफ अ मेमोरी, नॉट जस्ट एनी मेमोरी, अ वेरी हैप्पी मेमोरी, अ वेरी पावरफुल मेमोरी। कैन यू डू दिस? यस, वेरी वेल। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स फ्रॉम हैरी पॉटर। मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। मूवी से भी सीख सकते हैं बेटा। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस? बाय होल्डिंग ऑन टू योर सपोर्ट सिस्टम्स। यू हैव, एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ एक छोटा सा, नन्हा सा, एक सेकेंड का हिस्सा है।
So manage stress by doing good things and remembering good things that happen in your life. Not that exam is a bad thing, but the places when you were successful, remember how that felt like. Try to have these exercises. Breathing exercises help करती हैं stress में. Meditation, exercise. बहुत stressed out feel हो रहा है, जाओ साइकिल लेके 5 मिनट हो. Socialize, talk to your friends. Not just on Facebook, टिप 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 टिप. नहीं, go out with them. उनके साथ खेल लो थोड़ा सा. Yes, कोरोना वायरस है, I know. तो थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए. Sleep. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है, दैट इज रिमेंबर सक्सेस डायरेक्शन होता है, इट्स नॉट अ कोऑर्डिनेट. सक्सेस इज अ दिशा. एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, इट्स ओके. हो सकता है along the line कहीं आप फेल करोगे, कहीं आप गिरोगे, but you'll get up. And how do you get up? By making sure that the stress does not kill you, right? So relaxation responses, sometimes a chant, a prayer, right? कुछ अच्छा देख लिया, right? That can help you. ये हार्वर्ड मेडिसिन ने बोला है, soothing words can sometimes help you, right? Now this is not me being religious, but this is just one of the examples. So Namyo Myo Rengi Kyo, it basically means I submit myself to the world and whatever. Not whatever, I mean it's a word. It's a chant. तो ऐसा कुछ भी अगर आप करते हो, whatever is your wish, you can go for it. Physical activity and remember support systems. आपके पेरेंट्स से बताओ तो सही कि आपको परेशानी हो रही है. अगर उन्हें पता ही नहीं कि आपको परेशानी हो रही है, how will they help you? Right? Talk to friends, talk to families. Talk to diaries if you are into that, right? So guys, you can defeat stress, you can conquer the stress, but you have to take the driver's seat in your life. Driver's seat in your life मतलब situations आपको ड्राइव ना करें, आप खुद को ड्राइव करो. मुझे ये करना है, मुझे ऐसा फील करना है, right? So guys, that is the key by which you can stay motivated. Now I would want you to take that pyramid जो मैंने एकदम शुरुआत में आपको दिखाया था. Let me just take you to the pyramid. Hierarchy of motivation. Maslow's hierarchy. Maslow एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे और ये पिरामिड्स धीरे धीरे मॉडिफाई होके अब ये बनी है. सो ये पिरामिड आपको बताता है कि आपके मोटिवेटर्स का ऑर्डर ये होता है. पहले आपको फिजियोलॉजिकल चीजों में संतोष होना चाहिए. सो अगर आपको भूख लगी हुई है तो यार आप सेफ्टी तो फील नहीं करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, भूख, प्यास, ठंड, गरम, इन चीजों में सिक्योर फील करना जरूरी है. फिर यू नीड टू टॉक अबाउट सेफ्टी. सेफ्टी कैसा? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, है ना. अब पापा ने धमकी दे दी घर से निकाल दूंगा, फिर तो हो गया काम. फिर कैसे ही मैं आगे ऊपर बढ़ पाऊंगा? नहीं हो सकता. ऑन पेरेंट्स रिमेंबर कि ऐसे ही हमारा दिमाग सोचता है. पहले दिमाग को खाने प्यास की भड़ी पड़ी होती है, उसके बाद वो देखेगा कि अच्छा ऊपर भी कुछ चीजें हैं, सेफ्टी बड़ी है. फिर इट लुक्स फॉर लव एंड बिलोंगिंग. लव एंड बिलोंगिंग का मतलब ही है नो मैटर व्हाट दे डू यू आर विथ देम. अगर वो गिरे तो आप उनके साथ हो, अगर वो बढ़े तो आप उनके साथ हो. लव एंड बिलोंगिंग इज अ नेक्स्ट हायरार्की. फिर होता है एस्टीम. एस्टीम मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम. खुद के लिए रिस्पेक्ट तब आती है कि हाँ, आई हैव फैमिली, आई हैव सेफ्टी, आई हैव, मेरी भूख प्यास सब मिटी हुई है. एंड देन कम्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द टिप ऑफ द पिरामिड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट. खुद को एक हायर पर्पस का पार्ट समझना, खुद की कंप्लीट पोटेंशियल का इस्तेमाल करना. सो सम पीपल, जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लो, उनको पता था कि मे बी ही कैन बी अ बेटर पर्सन इफ ही डज क्रिकेट. सो दैट इज वेयर ही वर्कड ऑन. यहीं पे उन्होंने काम किया. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और यही सीक्वेंस होता है फॉलो करने का. दिस इज हाउ things are followed. This is how your brain works it through, right? And if you help your kid, अगर आप अपने बच्चे को ये सभी चीजों को करने में मदद करोगे, that is how he will be, वो अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकता है.
So guys, I hope ये सेशन आपको कुछ ना कुछ सिखा पाया होगा. Very important guys. अगर you have any questions, right? If you have any questions, make sure that you ask it with me in the comments below. आप मुझसे पूछ सकते हैं. So guys, remember, Unacademy wants you to achieve your best. We have the let's crack it attitude, and how do we help you? By making sure that you have access to all our platforms and utilize it in the best possible way. So if you haven't downloaded the app, फटाफट download कर लो. आपको स्केड्यूल्स पता है, शॉर्ट वीडियोस सुबह में, लाइव वीडियोस रात में, स्पेशल क्लासेस 3 बजे प्लस क्लासेस 4:30 बजे. ट्रैकर से आप मेरे सारे वीडियोस को खोज सकते हो. ट्रैकर कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसमें पूरी लिस्ट है चैप्टर वाइज. यू कैन टेक देम व्हेनेवर नीडेड. अभी आपको सीबीएसई में हेल्प करने के लिए हमने इमर्ज लेकर आए. इमर्ज में क्या होता है ना कि आपको हर वीकेंड 90 मिनट का एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट मिलता है, उसका वीडियो सॉल्यूशंस मिलता है, उसका रैंक मिलता है, सब कुछ मिलेगा. सितंबर 11 से स्टार्ट हो चुका है. कोड कैसे करना है, सॉरी एक्सेस कैसे करना है, ऐप डाउनलोड करो, यूज कर कोड Sona05, यू हैव द एक्सेस. अब प्लस और आइकॉनिक क्या है बेटा? दीज आर सब्सक्रिप्शंस आर द बेस्ट वेज टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म. You get access to all the courses in your category, doubt clearing sessions, live test, mock test, mentorship, guidance, वो सब मिलता है आपको, राइट? कैसे लेना है? अब देखो ये एग्जांपल है कुछ कोर्सेज के. जैसे ये एक मेरा कोर्स था, थोड़ा पुराना है और अभी अक्टूबर में खत्म होगा. एक नया कोर्स हम लेके आए, परीक्षा. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैच है, सारे कमाल के एडुकेटर्स, हर्षदीप सर है ना, अमृता मैम, तरुणा मैम, अंशुल सर, ऑल ग्रेट टीचर्स. कैसे लें? पहले सब्सक्रिप्शन चूज करो, दूसरे बार कोशिश करना लंबा सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि पर मंथ प्राइस घट जाता है. फिर ऐड करना कोड Sona05 जो मेरा टीचर कोड है. टीचर कोड ऐड करते सब्सक्रिप्शन कम्स डाउन बाय 10%. 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है. अभी हमने 20 तारीख तक क्या किया है कि IIT JEE फाउंडेशन, राइट? सो व्हाट वी आर डूइंग कि आपका फाउंडेशन प्लस IIT दोनों कवर होगा 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए, राइट? तो एक्चुअल प्राइस 75,000 है, तो ऑफर प्राइस इज हाउ मच? जस्ट 59,500. और ये सिर्फ 20 तारीख तक काम करेगा, तो बेटा जल्दी जल्दी ले लो. वी ऑल्सो हैव ब्रॉट अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसका आप हमेशा इंतजार करते हो. सितंबर 26 को होगा 1 बजे. रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है, राइट? अब करना क्या है? 1 बजे एग्जाम होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, स्कॉलरशिप टेस्ट है, यानी 10 लाख से भी ज्यादा के स्कॉलरशिप्स हैं, राइट? क्लास 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, हाउ डू यू डू एक्सेस इट? बस यूज द कोड Sona05, आपको एक्सेस मिल जाता है. नो पेमेंट नेसेसरी, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, अब कैसे आपको सब्सक्रिप्शंस का रिवॉर्ड मिलता है बेटा? रैंक 1 to 3 1 साल का सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, 11 to 50 50% स्कॉलरशिप, 51 to 100 25% स्कॉलरशिप. तो इट्स अ बिग डील. सिर्फ 60 मिनट का होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, 2 सेक्शंस होंगे, साइंस और मैथ्स. ठीक है, मेक श्योर कि आप आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे इससे कि कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया थोड़ा बुरा है, किस में करने की मदद चाहिए, वो सब आपको मिलेगा. सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ठीक है, सो गाइस ज्वाइन करो नाउ एंड मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट इट विद फुल प्रिपरेशन. ठीक है, तो इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. डू रिमेंबर टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स. ठीक है, अब गाइस आइकॉनिक क्या है ना, प्लस का बड़ा भाई है. उसमें प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, उसके अलावा पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट सेशंस भी होते हैं. तरीका वही है, पहले कैटेगरी, दूसरा कोड एंड तीसरा 10% डिस्काउंट. And guys, if you find something inappropriate in the videos, obviously you can tell us and we'll take care of that too, right? और make sure कि आप मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशंस आपको फॉलो करने पर ही आता है. स्पेशल क्लासेस पैक्स एक्स्ट्रा फीचर्स देन यूट्यूब. क्यों? रियल टाइम होता है, कोल्स, पोल्स, क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, ये सब के सब आते हैं बेटा. So guys, use my code Sona05 to get the best of the Unacademy platform and access these special classes completely free.
ठीक है, डाउनलोड कर लो अब तक आपने नहीं किया हो गूगल प्ले या ऐप स्टोर से, एंड यूज करो कोड सोना05। ये हमारा टेलीग्राम्स है t.me अनअकैडमी एनटीएससी फाउंडेशन और सोना सिंह अकेडमी। यू कैन कनेक्ट विद अस। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज दैट इज हाउ you get access to all of the features. Thank you so much, guys.